vehicle or by foot, will take the injured to the hospital, or like whatever the step is taken. And in the last, I would, in the bracket, I would use to write the time and distance, from going to that point to hospital and coming back to the meeting place at last, where they are going to meet to head to their final destination where they were heading. Now, some other points which I would like to add are, if the first is the priority, जो पहली situation होती है, which is generally that someone is injured, you must give first aid if you are having, or like if you are not having, you can have from any other, like if you are stopped at dhaba or something, someone must be having, or the dhaba must be having. So you must try to give first aid to the injured and then take to hospital. And second and third, yeah, it depends on the GP to GP. So whatever time is their time is short, that must needed to be like handled earlier. And then the fourth one is that many, like they say that my like a cow has went inside the swimming that talab or something. So you must remember that animals are natural swimmer. They do not drown, so they will come out automatically. Like after some time, no one teaches them how to swim, so they will come out. This is just to divert your focus and to see that whether you have some common sense or not. And second is that like writing time and distance is very much important. And also in the discussion, it is required that you discuss time and distance with the group. And you must also listen to others point, because if the group nominates you for the group solution, so you must not present your own solution, you must present which the group has discussed, and you must also include their own points. And in many of the situations, they say that the connection is lost or the storm came, so no mobile connectivity. So what you can remember is that wireless mostly works in this condition. By wireless, I mean that what we call walkie-talkie, which we say, which operates on radio frequencies and some satellite phones. They work, so they police and security personnel use them. And sometimes in one of my SSBs, a GP came where one engineer who was posted at a dam came to ask for help. So who knew that mischievous people are going there and they are going to do that? You must take that person to the police, because he has seen their faces and you have not seen them. So you must also take him or her, whoever that is, to there. And you must also talk with the group like properly. If there should be no fighting, in one of my SSBs there was a small fight that it was about vaccine. So usually in first aid kit, what we have like normal Dettol, or you may say Savlon, and normal like bandages and all. So one person said that we will give anti-rabies vaccine, but anti-rabies is usually not included in the first aid. So you must take that person to hospital. And if the whole of the group is agreeing to taking that injured person to some other hospital, you must also agree. And if you keep on debating, or you may say keep on arguing with the group that no, we should go there, so it will ruin the group's time. So you must first try to pitch your idea. Once the GTO will listen, you never think that your point is not acknowledged. GTO listens. So you first try to pitch your idea. If the group is not convinced, you go with their idea and help them improving their, you may say that, their plan. So talking and these things are usually important. And so you must also have a record of time. You must not be like very slow. You must practice, as Gautam said, you must practice a few times and not very much time, so that because sometimes a fixed pattern sets in our mind, which is not good, because we have to adapt according to the situation in the GP which is conducted in the SSB. Yeah, very well said by Dikshant. And even I would also like to add some point that जो आप resources use कर रहे हैं, the resources या तो given होंगे that आप कहीं ढाबा पे हैं तो ढाबा पे mostly there are other vehicles as well. नहीं तो you can also use some imaginary resources as well. But ये ध्यान रखिएगा, if you are using utilizing any imaginary resource, please first of all write it down, एंड साथ ही साथ ऐसा इमेजिनरी रिसोर्स नाउ दैट इट इज नॉट प्रैक्टिकल. ओके, आप सीधा आप ये नहीं कह सकते कि
पूरा मतलब जो इंजर्ड पर्सन था उधर लेटा हुआ था और उतने में ही एक एम्बुलेंस जा रही थी, तो आपने उसको उसी में भेज दिया? नो। लाइक व्हाट आर द कोइंसिडेंस, व्हाट आर द चांसेस, व्हाट आर द कोइंसिडेंस दैट जरूरी है कि एक एम्बुलेंस जाएगी? तो डोंट यूज दिस काइंड ऑफ इमेजिनरी रिसोर्स, बट यस यू कैन ऑफ कोर्स इमेजिन दैट अगर कोई ढाबा है, देन पीपल आर देयर, ओके, और वो ढाबा वाला भी कहीं से आता जाता होगा, उसके पास भी एटलीस्ट कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, so you can use that. And starting time, finishing time, as told by Diksha, very much important, gives a good impression. And during group discussion, yes, I will ask for doubts. Wait. And during group discussion, of course, मैं ज़्यादा बातें बताना भूल गया. For the group discussion, अगर आपका पॉइंट आपने बोला एंड ग्रुप एक्नॉलेज नहीं करता है, नो प्रॉब्लम. जो आपका पूरा का पूरा शीट है वो जीटीओ के पास है, वो आराम से पढ़ेगा, आराम से देखेगा, सब कुछ करेगा, उसको पता है आपने किस तरह से सॉल्व किया है, और वो पूरे आपके ग्रुप डिस्कशन को सुन. तो इस बात पे घबराने नहीं है कि आपका पॉइंट नहीं लिया गया या दूसरा पॉइंट लिया गया. और मैं तो यही बोलूँगा कि ज़्यादातर तो अभी मतलब क्या होता है, बच्चे एंथुसियास्ट होते हैं, तो जब पूरा ग्रुप डिस्कशन हो जाता है तो बोलते हैं कि कौन आगे आके सॉल्व करेगा, और या फिर मेरे को ग्रुप का जो कॉमन प्लानिंग है वो बताएगा. तो अगर कोई खुद को नॉमिनेट करता है, सपोर्ट इट, या फिर ग्रुप किसी और को नॉमिनेट करने लग जाता है, सपोर्ट देम ऑल्सो. ओनली मैं तो ये बोलूँगा, नेवर नॉमिनेट योरसेल्फ, बट अगर पूरा ग्रुप करता है देन ऑफ कोर्स यू मस्ट गो. एंड फिर आप ग्रुप का ही प्लान बताना जो इतना भी डिस्कस हुआ है. काफ़ी टाइम होता है कि पूरा प्लान डिस्कस ही नहीं हो पाता, तो उधर तक जहाँ तक ग्रुप का प्लान डिस्कस हुआ है उधर तक उनका बताना, और उसके बाद या तो आप अपना बता पाओ अगर सिमिलर है तो, और अगर नहीं सिमिलर है तो ट्राई टू सॉल्व एज मच एज यू कैन. क्योंकि बीच में आप अगर छोड़ दोगे वाइल नरेटिंग और टेलिंग द कॉमन सॉल्यूशन, इट विल नॉट गिव अ गुड आइडिया. और थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा उस वक्त, बिकॉज पूरा ग्रुप आपको नॉमिनेट कर रहा है, ग्रुप सॉल्यूशन पूरा हुआ ही नहीं है. डोंट वरी, ज़्यादा मत सोच लो. जहाँ तक आपको लग रहा है ग्रुप ने डिसाइड कर लिया था उतना ग्रुप तक का बताना, और उसके बाद खुद से प्लान फॉर्म कर लेना. एक दो गलती होगी, वो जीटो भी समझता है कि एट एग्जैक्ट मोमेंट कोई भी बंदा इतनी जल्दी मतलब सोच तो सकता है, बट इट इज हार्ड समटाइम्स, तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. ठीक है, और खुद को आगे से नॉमिनेट मत करना, ग्रुप अगर नॉमिनेट करे दैट इज द गुड थिंग. एंड क्योंकि कोई भी गलती करने से बचना है आपको, तो दैट इज द थिंग. या so now any doubts, प्रशांत? या प्लीज प्रशांत. तो सर जैसे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे जो ढाबा है वहाँ पे स्टोव फट गया है और जो ढाबा वाला जो कुक था वो जल गया है, तो उसे फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट एड ये कि सबसे पहले अगर जल गया है तो आप क्या कर सकते हो, या तो आपके फर्स्ट एड में ज़्यादातर सूदिंग क्रीम्स होती हैं, यू नो, टोक्रामाइसिन एंड ऑल, तो आप वो एंटीसेप्टिक क्रीम्स या तो लगा सकते हो. नहीं तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि अगर आग लगी हुई है अभी भी, तो सबसे पहले उसको बुझाओगे, कूल डाउन करोगे उसको थोड़ा, या तो पानी पिलाओ, उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करो. फर्स्ट थिंग इज दैट. तो बॉडी टेम्परेचर कैसे कम हो सकता है? उसको ठंडा पानी पिला के, या फिर है ना, स्प्रिंकल अ बिट वाटर ऑन इट, एंड फिर उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके जाओ. तो अगर जल गया है तो यू कांट गिव दैट मच मेडिसिन. पेन किलर दे सकते हो कि दर्द ना हो, बट उसके बाद तो डॉक्टर का ही काम होगा, आप डॉक्टर नहीं हो क्योंकि. तो दिस इज द ओनली थिंग यू कैन गिव एज फर्स्ट थिंग. एनीथिंग दीक्षांत, आप बोलना चाहोगे? No, it's the same. या अर्नव, यू कैन स्पीक नाउ. Yeah, I have two questions related to the timing and the speed. जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है इंजर्ड पर्सन की, तो हम पहले patient को करते हैं तो टाइम लगती है, फिर उसके बाद उसे लेके जाते हैं, उसे जो भी स्टेट देना हो, फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं. तो हमें कौन सी स्पीड लिखनी है? क्या पहुंचने तक की स्पीड लिखनी है, या फिर मतलब जो इंजर्ड था उसके पास पहुंचे हम
वो भी स्पीड मेंशन करनी है, या फिर हम मतलब कौन सी, और जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग पूरा प्लान को सोल्यूशन करने की टाइमिंग लिखनी है, या फिर उस बंदे तक पहुंचने तक की टाइमिंग लिखनी है हमको? ओके, तो योर वॉइस वाज लैगिंग अ बिट, बट आई गॉट द आइडिया कि आप पूछ रहे हो कि मान लो अगर कोई इंजर्ड पर्सन है, आप सबसे पहले तो आप उसको फर्स्ट एड दोगे एंड ऑल, फिर आप उसको लेके जाओगे, तो जो टाइमिंग लिखनी है वो उसके पास तक पहुंच के उसको फर्स्ट एड देने तक की लिखनी है, या फिर उसको लेके हॉस्पिटल हम गए वो सब? तो आपने जो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की, दे आर 4 डिफरेंट प्रॉब्लम, तो उन चारों में से आपने जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व की, सिर्फ उसकी आप स्पेसिफिक टाइम लिखोगे कि आपने उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो कितना टाइम लिया और कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। दैट इज द थिंग, यू गेटिंग माई पॉइंट है ना? मान लो या अगर आप किसी बच्चे, मतलब मान लो किसी पर्सन हु वाज इन एक्सीडेंट एंड वो इंजर्ड हो गया, तो आपने सबसे पहले तो उसको फर्स्ट एड दिया ही दिया, साथ साथ अब उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको एडमिट करवाया एंड और फिर उसके बाद आपको वापस भी आना है। वापस आने वाला टाइम या तो आप उसमें लिख सकते हो, या फिर आप जब आप वापस आने वाला टाइम, व्हेन एज आई टोल्ड यू कि आप सबसे पहले तो चार प्रॉब्लम्स को लिखोगे, देन यू विल आल्सो टेल दैट वी ऑल विल मीट एट दिस प्लेस। तो या तो आप उस वक्त लिख सकते हो, नहीं तो आप उसके अंदर भी आप ये लिख सकते हो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस मच, पूरा ट्रेवल्ड, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द हॉस्पिटल। व्हीकल में भी सी, आप जरूरी नहीं है आपके पास जो व्हीकल है वो फोर व्हीलर ही हो, स्पेशियस हो। इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज ऑल्सो, राइट? तो आप एक एग्जैक्ट सिनारियो बना के नहीं पूछ सकते, वो आपको तब उधर ही सर, समझना पड़ेगा। जो उसकी स्पीड थी वो तो पहली वाली लिखनी है ना, जो इंजर तक पहुंचे हैं हम उसी स्पीड को लिखना है ना? इंजर्ड, मोस्टली डिस जो इंजर्ड पर्सन होता है, लिसन लिसन अर्नव, मोस्टली जो इंजर्ड पर्सन होता है वो आपके पास ही होता है, आपके पास। जैसे अगर कोई ढाबा है, उधर कोई स्टोव फट गया, जल गया, आप उस ढाबे पे ही थे तब वो होता है मोस्टली। मोस्टली क्या, 100% यू कैन सी। बट अगर तब भी नहीं है, देन यू विल इंक्लूड द बोथ टाइम, जितना आपको पहुंचने में लगा एंड उसको लेके आप हॉस्पिटल गए, वो टाइम भी आपको इंक्लूड करके लिखना है। आप हॉस्पिटल उसको लेके गए, उधर तक का टाइम आपको इंक्लूड करके लिखना है। गॉट इट और ना? शिखर, यू कैन आस्क इट आउट। Shikhar, you are not audible. If you're trying to speak, if you have doubt, you can ask in the chat box. अगर network issue हो रहा है तो. Okay, yeah, Ashu, tell them you can ask your doubt, please. Ask it. Sir, as we are talking about, they have come here in village for the picnic. So they have come here according to their timelines. So when we are considering, they have met for here some sort of emergencies, like we have come up with 5 to 6 problems here. So is it compulsory to reach their college back within time? Yes, जब आपको बोला कि आपको कॉलेज पहुंचना है 8 बजे से पहले, क्योंकि वो बंद हो जाएगा, तो आप मान लो अगर लेट पहुंचे तो आप रहोगे कहाँ? इट इज अ कंपल्शन। वो आपको टाइम आखिर क्यों दिया गया? वो टाइम आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप पे टाइम प्रेशर हो। अगर आप उस टाइम से टाइम अगर आप उस टाइम के बाद भी पहुंच सकते हो तो यू हैव इन्फिनिट टाइम। तो आप कल सुबह कितने बजे तक आओ, फिर तो पास पूरा दिन हो गया। द टाइम विच यू आर गिवन, यू आर सपोज टू सॉल्व एंड रीच विद इन दैट टाइम, तभी आप टाइम प्रेशर फील करोगे और तभी आप विद इन टाइम सॉल्व कर पाओगे। That is why it is required to solve within time. You getting my point, Ashu? Yes, sir. Yes, sir. Yes, you have to solve and reach before the time given. So I would like to Yes, yes, yes. like the question regarding what Ashu said. So you must plan in advance that if you have to reach a particular place by 10 o'clock, and your place at which you are all are like collected after tackling all the situation is 40 kilometers. So you must at least keep 50 minutes in hand. So like you must tackle all the situation and stand together at a place by 9:20 or 9:10, so that you can reach well in time.
because many a times there is some competition of state level or whatever, so you must reach in time. And I have a different opinion. If you are attending like some wedding, 8 people are going to a friend's sister's wedding, so if the time is very less, you can do that 2 3 people attend the wedding and like convey their wishes, and gifts if are there, and rest all can do that. This is my opinion, and it should be done only when the time is very less and the priorities or the situations are not being able to tackle in the time. Otherwise you should try that, like complete tackle all the situation and reach the destination in time. Yeah, very much cleared by Diksha. And one doubt is asked in the chat box that at times you face a problem that cattle of a person is missing. So while dividing group, is it necessary to send two or more person, not less than that? No. अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके ग्रुप में मेंबर कितने हैं। अगर 6 में से आप 2 बंदे सिर्फ एक कैटल ढूंढने के भेज दोगे, इज इट अ गुड लीडिंग क्वालिटी, या फिर आपने सही से सॉल्व किया है? इन रियलिटी आपको खुद पता लग जाएगा। नो, एक कैटल को ढूंढने के लिए आप 6 में से 8 में से 10 में से 2 बंदे भेज दोगे ना, आप बंदों को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। कैटल ढूंढने का काम सिर्फ आप क्यों, विलेज के दूसरे लोग भी तो कर सकते हैं, राइट? तो आप जो आप यंग फोर्स है आपकी, जो आपका यंग ग्रुप मेंबर्स हैं, आप उनका टाइम दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो, तो यहाँ पे वेस्ट क्यों करो? कीप दैट इन माइंड कि जो ये कैटल वाला सिचुएशन है, टू हैंडल इट बट इनडायरेक्टली, ये आपका बस टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है। ओके, या आशु, यू हैव एनी डाउट? Sir, for example, if they have come in village for a marriage, so there are any other tasks which are of important nature, priority nature. So can we skip it? Can you repeat, Ashu, or either you can write in the chat box, The please? main task is to attend marriage. Can See, mostly what actually they happens. have come up in village for attending marriage of someone's sisters or Okay, I got it. That you are saying so that can अगर we कोई skip? marriage, yes, I got your right. Yeah, I got your doubt. See, Ashu, mostly क्या होता है, ये एक्सरसाइज मनाई इंस्ट्रक्टर्स असेसर्स के द्वारा जाती है, हम लोगों के द्वारा नहीं, राइट? तो जब वो ये बनाते हैं, दे कीप इन माइंड दैट प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद इन द टाइम। वो ऐसे नहीं बनाते कि प्रॉब्लम इम्प्रैक्टिकल हैं या फिर दे कैन नॉट बी सॉल्व विद इन टाइम। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर जो टाइमिंग्स दी गई हैं वो एक रीजन के साथ दी गई हैं दैट दे आर सॉल्वेबल, so therefore try to solve and reach and attend. Got it? Because they have made in that way, there have been made in that way because या तो अगर मान लो मैं भी अब बनाने को एक जीपी बना दूं, बट हो सकता है वो इम्प्रैक्टिकल होगा, हो सकता है उसकी टाइमिंग ऐसी होगी कि आप पहुंच ही ना पाओ, कितना भी ट्राई कर लो। बट जो असेसर्स है उन्होंने उसको बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा दैट though you will feel a bit of less time, but they are doable. That is, I consider, in my view, that you should be able to solve within time limit. Any other doubt you guys have? That you should not send less than 2, because in army also no one is sent alone, just to support in terms of any mishap. So what is कच्चा and metallic role in how? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल शिखर का डाउट दैट 2 या 2 से कम वाला, आपके पास 4 प्रॉब्लम है, 6 बंदे, आप क्या आप डेढ़ काट सकते हो बंदों को? नहीं ना, ठीक है, यू कैन नॉट, राइट? तो ये बात ध्यान रहे दैट ऑफकोर्स 2 भेजोगे, मैं समझ गया आपका कहना क्या है, कहते कि अकेला नहीं एंड ऑल, बट कीप दैट इन माइंड, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। अगर जहाँ पे सिर्फ एक बंदे की नीड है, व्हाई यू विल सेंड 2 बेफालतू में? व्हाई? जस्ट टू वेस्ट हिज टाइम? नो सर, what are कच्चा and metal is, how should we use them?
सी देयर आर 3 रोड्स, मेटेलिक रोड यानी पक्की सड़क, जो मोस्टली वी सी इन सिटीज, टाउन्स एंड ऑल, जहाँ पे आपकी गाड़ी चल सकती है, अच्छी स्पीड में चल सकती है, इट इज अ पक्की रोड। देन देयर इज अ कच्चा रोड मोस्टली आप गाँव में देखते हो, गाड़ी चल पाती है, बाइक चल पाती है, इवन कार भी चल पाती है, बट बहुत धीरे या फिर तेज नहीं चल सकती, राइट। फिर उसके बाद आप देखते हो एकदम पतली पतली पगडंडी, उधर गांव वाले तो जैसे तैसे बाइक चला लेते हैं, बट इन रियलिटी तो किसी व्हीकल के द्वारा चलाई नहीं जा सकती, विच इज अनमोटरेबल रोड। So there are 3 roads, metallic, and then it is unmetallic but motorable, and then there is unmetallic unmotorable, यानी कच्ची सड़क और ऐसी पगडंडी कि आप उस पर गाड़ी नहीं चला सकते। तो आपको उस हिसाब से स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा। मेटेलिक रोड पे आपकी गाड़ी की स्पीड तेज होगी, बट जो कच्ची सड़क होगी इस पे नहीं। और पगडंडी पे तो आप सिर्फ समटाइम्स हम अगर साइकिल दे रखा है सिचुएशन में, तो सिर्फ या तो साइकिल भी चला पाओगे कि नहीं तो सिर्फ पैदल जा पाओगे। तो आपको उस हिसाब से टाइम लेना। कच्चे में आपकी गाड़ी धीरे हो जाएगी, तो आपको उस हिसाब से टाइम लेना। गेटिंग माई पॉइंट उधर? इज इट क्लियर नाउ? I believe in maintenance, the bounded time is given more important than big mass. Time bounded is given more importance. The reason is that देखो, सब ऑफ कोर्स हम साइमल्टेनियसली ही काम करेंगे, एक ग्रुप उस पर भी काम कर रहा होगा, एक ग्रुप उस पर भी काम कर रहा होगा, बट हम उसको प्रायोरिटाइज इसलिए करेंगे। अगर मान लो आपके मास प्रायोरिटी वाले के लिए ही कम टाइम होगा, तो आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। आखिर क्यों? क्योंकि भाई वो जल्दी होने वाला है। अगर हमने उसको पहले नहीं रोका तो वो होके खत्म हो जाएगा। अगर आपने दोनों को बराबर प्रायोरिटी दी, जबकि मान लो ये 1 घंटा पहले हो जाएगा प्रॉब्लम और ये 1 घंटे बाद हो रहा है, इसके दोनों को बराबर प्रायोरिटी दी, सही नॉर्मल टाइम पे पहुंचे मान लो, जब तक आप इसको बचाओगे तब तक तो ये हो चुका होगा, क्योंकि ये तो 1 घंटे पहले का ही है। तो इसीलिए आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है, आपको उस हिसाब से देखना है कि किस प्रॉब्लम के लिए आपके पास कम टाइम है। अगर मास वाले के लिए कम टाइम होगा, देन यू विल गो विथ मास वन। जरूरी नहीं है कि आपको मास के लिए थर्ड ही जाना है। यू हैव टू सी द टाइम एंड द सिचुएशन। आपको सिचुएशन, डिस्टेंस, टाइम तीनों देख के यू हैव टू चूज। इसलिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उधर। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी को सेकंड प्रायोरिटी देनी, इसी को थर्ड, इसको। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, ओके। तो आपको उधर देखना पड़ेगा दैट विच वन शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी, क्योंकि किसके लिए हमारे पास कम टाइम है, which problem you have to solve for. That is the thing. Clear now? Yes, got it. Thank you. Yeah. Anybody else have any kind of doubt, please? If no, then we will go ahead. So next is our lecturing. I will say one of the most important test, and it confirms that a person is confident enough or not. Why? Because एक ग्रुप में, भीड़ में जब सब बोल रहे होते हैं, तब आराम से एक बंदा भी बोल सकता है, भीड़ का एक हिस्सा समझ के। बट जब आपको एक अलग से रख के, खड़ा करके उन्हीं लोगों के सामने बुलवाया जाए, जरूरी नहीं आप बोल पाओ। So that is why it is very much important task. And so first I will tell you in the brief that क्या होता क्या है। You will be sitting in a group, chest number wise, या तो it depends upon G2B, बट ज़्यादातर चेस्ट नंबर वाइज ही आपका लेक्चर स्टार्ट होता है, या तो रिवर्स ऑर्डर में कभी कभार, इट डिपेंड्स ऑन वीडियो। तो यू विल बी गिवन 3 मिनट्स। फर्स्ट आप क्या करोगे, मान लो अगर आप पहले मेंबर हो, आप एक चिट उठाओगे। देयर विल बी इधर चिट्स, नहीं तो आपको एक पतले से कार्डबोर्ड जैसे में 4 टॉपिक्स लिखे हुए होंगे। अब जरूरी नहीं आपके पास कोई भी, यू हैव टू चूज। आप गए, आपने चूज किया और आपने 4 टॉपिक्स, आपको 4 टॉपिक दिखेंगे। उन 4 टॉपिक में एक होगा हाई लेवल या फिर अबव एवरेज टॉपिक, 2 टॉपिक होंगे नॉर्मल एवरेज टॉपिक, और एक टॉपिक होगा बिलो एवरेज। मोस्टली
कभी कभार सिचुएशन चेंज भी होती है, बट मोस्टली लाइक 90% ऑफ द टाइम इट इज द सेम केस. तो देयर विल बी 4 टॉपिक्स. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आपको 3 मिनट दिए जाएंगे to think and prepare that what you will be about to speak on any of these 4 topics. और जैसे आपके 3 मिनट खत्म होंगे, एक बेल बजाएगा जीटीओ, एंड वो बेल बजते ही यू विल कम एंड स्टार्ट गिविंग अ लेक्चर और अ नरेशन फॉर 3 मिनट्स ऑन दैट टॉपिक. अब उन 4 मिनट से आपको कैसे डिसाइड करना है टॉपिक एंड कैसे आपको बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, विल टॉक अबाउट इट नाउ. तो होता क्या है, यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप ऑफ एज मच एज मेंबर 6 to 10 इन अ सेमी सर्कल. पहला जाएगा, उसको 3 मिनट दिए जाएंगे सबसे पहले अपना रेडी करने के लिए लेक्चर, एंड देन फिर वो 3 मिनट बोलेगा. जैसे ही उसके बोलने के टाइम स्टार्ट होता है, जैसे उसका बोलने का टाइम स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे जो सेकंड बंदा है वो उठेगा और अपने आप कोई दूसरी चिट उठा लेगा, ताकि जब तक वो बोल रहा है तब तक वो बाहर जाके अलग जाके थोड़ा सा अपनी प्लानिंग कर ले और टाइम सेव होगा इसी तरीके से. तो जब वो बोल रहा है तब तक दूसरा बंदा ही इज प्लानिंग थिंग्स आउट. उसको 3 मिनट मिला है, ही इज थिंकिंग अबाउट व्हाट ही विल बी स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, एंड देन ही विल बी स्पीकिंग ऑन दैट टॉपिक फॉर 3 मिनट. और जैसे ही वो बोलना चालू करेगा, देन थर्ड अपने आप खड़ा होके चिट उठा के चला जाएगा एंड स्टार्ट प्रिपेयर. So it goes like this. Now, things which you have to keep in mind. First of all, you do not have to stop. Okay, you should be fluent. आप स्टटर नहीं कर रहे हो, नर्वस नहीं हो रहे हो, ठीक है. हो सकता है आपके दिमाग में एट सम पॉइंट क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे फ्लुएंट नहीं होते इंग्लिश में, तो एट सम पॉइंट यू आर नॉट एबल टू स्पीक. तो आप एक मोमेंट के लिए या फिर टिल दैट टाइम यू कैन स्पीक इन हिंदी. आपने एक सेंटेंस मान लो हिंदी में बोल दिया, जस्ट अ सेकंड, आपने एक सेंटेंस हिंदी में बोल दिया, देन यू स्विच बैक टू इंग्लिश. बट डू नॉट स्टॉप योर फ्लो. आप फ्लो अगर स्टॉप कर दोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप फिर रुके ही रह जाओगे, ठीक है. बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग. आपको जीटीओ को नहीं देखना है. जीटीओ इट डिपेंड, कभी कभार ग्रुप मेंबर्स के पीछे बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, यू विल बी फेसिंग ग्रुप मेंबर्स. आप जो लेक्चर दे रहे हो वो आप ग्रुप मेंबर्स को दे रहे हो, जीटीओ को नहीं. सो यू डोंट हैव टू लुक एट जीटीओ. you are giving the lecture to a group members, so you must look at group members only. आप उनसे आंखें मिला के एक एक करके पूरे ग्रुप की तरफ देखना है, ऐसे नहीं सिर्फ एक बंदे को देख के बोल दिया आपने. तो ईच एंड एवरी ग्रुप मेंबर प्रेजेंट देयर. नाउ you have to be fluent, stutter नहीं करना है. but how you should prepare? तो सबसे पहले तो there must be an introduction while lecture कि good afternoon GTO sir and my group members and whatever you want to say. मतलब similar that you are first greeting GTO and the group members, then you are talking about that today's topic of whatever it is, like for example is electronic vehicles. Then you will speak like that, good afternoon या फिर good evening या whatever time it is, good afternoon GTO sir and members. Today I am going to give a lecture on electronic vehicles. या फिर today I am my today's topic of lecture is electronic vehicles and I will be giving lecture on it. तो आप अब इसके बाद कैसे कर सकते हो, या तो आप पहले ही बता दो कि दैट आपके लेक्चर के कितने पार्ट हैं. देयर आर 3-4 डिफरेंट वेज, हम एक के ऊपर बात करेंगे. कुछ क्या करते हैं कि दे डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो डिवाइड किया उन्होंने वो बता भी देते हैं दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट first of all what types of electronic vehicles, okay, then their merits, then the demerits, then what the government has been doing to improve the situation, and then the conclusion part. तो ये क्या हो गया, आपने एक ओवरव्यू दे दिया कि ही विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. या तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो दैट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप, एंड देन आपने उसके बारे में बताया that there are some kind of heavy electric vehicles, then there are पहले था मेरे को ध्यान, अभी तो मेरे को ध्यान नहीं है इसके बारे में भी. मॉडिफाइड होता है एक, तो
and solely battery based hota hai. So you will talk about that. Then you will also then you will talk about the merit and all. पर आपने ग्रुप को बताया नहीं that there are these, so I will talking about these contents. उसके बाद तो you can prefer anyone. पहला वाला क्या है कि आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया तो वो थोड़ा बेहतर है, बट अगर आप कोई भी पॉइंट भूल गए तो जीटीओ के ध्यान में रहेगा ये, तो आपके मार्क्स भी कर सकते हैं। दूसरे वाले में यहाँ आपने इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया, बट अगर आप कोई पॉइंट भूल भी गए, कोई पार्ट आपने नहीं भी बताया, तो जीटीओ को एग्जैक्टली नहीं पता था कि व्हाट एल्स यू हैड इन माइंड, तो इसलिए उसमें थोड़ा चांस हो सकता है कि आपके ज़्यादा मार्क्स ना कटें। बट मेरा मानना है आप चाहे इंट्रोडक्शन दो ना दो, क्यों अगर आपका लेक्चर फ्लुएंट है, अगर आपका लेक्चर आपने प्रिपेयर अच्छे से किया है, तो समवॉट यू विल बी एबल टू एक्सेल इट। तो जैसे अभी फर्स्ट यू विल गिव इंट्रोडक्शन, देन विल टॉक अबाउट द इशू। वो इशू भी हो सकता है, मान लो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, so first you will talk about it, you will talk about the background of it, then you will talk about the present situation, then you will talk about what kind of future it might have, how other organizers or the government bodies are trying to stop the war, and what do you think about it. तो आप अपने व्यू, तो इट्स अ लेक्चर है, आपको फैक्चुअल डेटा तो पता नहीं है, बट साथ साथ आपको अपने व्यूज भी डालने हैं, इसको जस्ट फैक्चुअल नहीं रखना, आपको अपने व्यूज डालने हैं, दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ओके, और फिर आपको कंक्लूड करना। तो मोस्टली लेक्चर में यही चीज होती है, बट हाउ यू कैन प्रिपेयर, तो मेरा यही मानना है दैट एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयरिंग। अगर आपके पास 2 मंथ है तो आप एटलीस्ट एक लेक्चर हर दिन प्रिपेयर करो, ताकि आपके 50-60 अगर लेक्चर टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए। लेक्चर टॉपिक्स प्रिपेयर करने से या फिर करंट अफेयर्स पढ़ने से मोस्टली आपका लेक्चर टॉपिक कवर होगा, आपको इंटरव्यू में काम आएगा अगर पूछा गया, आपको ग्रुप डिस्कशंस में काम आएगा, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। आपकी सिर्फ एक चीज की वजह से इतनी सारी चीजें इम्प्रूव हो रही है, तो कंसीडर इट एज मैंडेटरी टू इम्प्रूव और टू गेट रिकमेंडेड। वाई? क्योंकि यही आपका एक्स फैक्टर बन सकता है इन दूसरों से अलग होगा। वाई? ज्यादातर बच्चे अगर प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे, बिलो एवरेज टॉपिक पे बोलेंगे, किसी भी टॉपिक पे बोलेंगे, बट देयर लेक्चर विल बी एवरेज। बहुत बार बीच में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, इट डजंट मैटर, बट दे वोंट बी एबल टू गिव प्रॉपर लेक्चरिंग। कहीं पे स्टटर करेंगे, स्टैमर करेंगे, सोचने लगेंगे वाइल गिविंग द लेक्चरिंग। जो भी सोचने का टाइम है, इट इज इन दूस अर्ली 3 मिनट्स। उन 3 मिनट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडिया, सबसे पहले तो आपने चूज करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चूजिंग। 4 टॉपिक होते हैं, फर्स्ट इज अबव एवरेज, ओके, other two topics are average, and the fourth one is kind of below average topic, like my best friend या फिर my favorite actor, something like this, which anybody can speak about. मोस्टली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो चूज करना है जिस पे आप सबसे ज्यादा बोल पाए, जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है। योर प्रायोरिटी 1 शुड बी दिस। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी 2 होनी चाहिए कि आपको बिलो एवरेज वाला टॉपिक नहीं बोलना है या फिर उसको इग्नोर करना है। ध्यान रहे, पहली प्रायोरिटी ये है लेकिन कि आपके पास जिस पे सबसे ज्यादा बोलने का कंटेंट है आप वो बोले, एंड सेकंड प्रायोरिटी ये है कि आप बिलो एवरेज टॉपिक पे ना बोले। यानी अगर ऐसा आपके पास मानो किस्मत ही खराब है और आपके पास ऐसी चिट आई जिसमें आपको किसी के बारे में कुछ आता पता नहीं है, बस स्पोर्ट्स के बारे में आप बोल सकते हो, देन स्पोर्ट्स के बारे में ही बोलो। डोंट गो फॉर अबव एवरेज टॉपिक जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। किसी भी टॉपिक के बारे में मत जाओ जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। जिस टॉपिक के पास का आपके पास बेस्ट नॉलेज है, गो फॉर इट। देन उन 3 मिनट्स में आप कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले आपने टॉपिक पक्का कर लिया कि यू विल बी स्पीकिंग ऑन दैट। उसके बाद देन यू विल स्टार्ट दैट हाउ इंट्रोडक्शन तो आपका पक्का है, दैट हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ग्रीटिंग दोगे एंड देन बताओगे मेरा टॉपिक। देन हाउ यू विल फर्स्ट गिव एन ओवरव्यू ऑफ दैट टॉपिक, उस टॉपिक का ओवरव्यू दोगे या फिर आखिरकार न्यूज में क्यों है ये बताओगे। साथ ही साथ फिर
मान लो अगर ईवी जैसा था तो मेरिट डिमेरिट, नहीं तो रशिया यूक्रेन वॉर का है तो बैकग्राउंड, करंट सिचुएशन, देन फ्यूचर में पॉसिबल क्या हो सकता है, एंड सिमिलर एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं मिडल ईस्ट में टेंशन एंड ऑल। उसके साथ साथ वो या तो गवर्नमेंट ने उस पर क्या काम किया, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट, और फिर उसके बाद कंक्लूजन। क्योंकि आपके पास 3 मिनट है, यू शुड बी, तो क्या होता है जैसे 2 मिनट 30 सेकेंड्स होते हैं, तो देर इज अ बेल, एक सिंगल बेल बजाई जाएगी जीटीओ के द्वारा, एंड इट विल इन्फॉर्म यू दैट योर 2 minutes 30 seconds आर डन, नाउ यू मस्ट कंक्लूड। जैसे ही वो बजे यू मस्ट स्टार्ट कंक्लूडिंग। ठीक है, आपको ओवर टाइम नहीं बोलना है। देयरफॉर जैसे ही आपका वो हो, आप आप जल्दी से अपना कंक्लूड करने लगे, एंड देन कंक्लूड होते ही थैंक यू एंड देन जस्ट सिट डाउन। ध्यान रहे आपको एटलीस्ट 2 minutes 30 seconds तो बोलना ही बोलना है, अदरवाइज इट विल लुक लाइक यू डू नॉट हैव इनफ स्टेमिना। आप 2 minute 30 seconds के लिए नहीं बोल पा रहे और बंदे यहाँ पे 5 5 6 6 घंटे लगातार बोलते, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड इसीलिए आप करंट अफेयर्स को रोज फॉलो कीजिए, यू रीड द एडिटोरियल्स, यू फॉलो न्यूज़पेपर, यू फॉलो यूट्यूब चैनल्स विच टेल यू अबाउट द न्यूज़ एंड कवर द डेली टॉपिक्स। उससे क्या होगा, यू विल गेट द नॉलेज एंड यू विल बी एबल टू स्पीक एट दैट पॉइंट। उस वक्त बोलने में पीपल फील द मोस्ट इशू। बंदे बहुत अच्छे अच्छे होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन लेक्चरिंग। Therefore, you should be prepared enough for it that आपको किसी भी टॉपिक पे दिया जाए, एटलीस्ट यू आर एबल टू स्पीक ऑन। और चाहे आपको फोर्थ टॉपिक ही क्यों ना लेना पड़े, बट आपका लेक्चर ऐसा होना चाहिए दैट इट इंस्पायर अदर्स। ओके, हो सकता है ज्यादातर ऑफकोर्स मैं खुद बोलता हूँ कि आप अवॉइड करें इसको, बट अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं बची, देन गो फॉर द फोर्थ टॉपिक, बट स्पीक लाइक दैट कि दूसरे बंदे भी इंस्पायर हो आपसे। ओके, दैट्स ऑल फॉर अबाउट लेक्चरिंग। एंड बाकी मैंने लेक्चर टॉपिक्स भी भेज रखे थे मैवरिक्स के ग्रुप में, एंड यू विल आल्सो कीप सेंडिंग अदर टॉपिक्स एज वेल। सो नाउ टू दीक्षांत। Yeah, so you all must have watched that movie Uri, in when Vicky Kaushal is planning for the operation and he is motivating the man and saying that कि हमने जंग शुरू नहीं की थी but we will definitely finish it. So you may see that lecturate is just same kind that you have. If you are not able to speak for like 2 3 minutes, how will you motivate your men and like motivate them to die or like fight for the country? So it is very much important that for not only for SSB but for the whole life. If you are in a corporate also, you need to give presentations and other things. So lecturate is a must thing even if you are not preparing for SSB. So and it is not like very difficult or something. It is very basic. Even most of my repeaters friends say that this is the most easy task in like complete 5 days. So like Gautam said, no, starting about lecturate. So like Gautam said that uh, please do not try to choose the last or the below average topic like my best friend or like my favorite book until and unless you do not even a single word about the rest three topics. So try to like speak on the average or above average topic. I myself got recommended on by the topic I chose was like farming because one was below average which I don't remember. Second was 5G and last was something like nuclear group or something. I had no information about that nuclear thing. So I went for farming as I belong to a farming family. So please select the topic on which you can confidently speak for 3 minutes easily. Next, Gautam also told you about the way how you can introduce the topic, like divide the part speech into 3 4 topics like what are its history, what are the present events, positive, negatives, like introduction, conclusion, and if it is like a event like Russia-Ukraine war, what you can add is that what is its impact on India and world? How has it affected as normal civilians? Like it has increased the fuel prices, so our daily expenses have been increased. So you can add that impacts. And what you can do is that you can add a quote in the starting of the speech, that quote related to that topic. And one more important point is that your
voice should not be constant along the same. If you are telling about the positive, your voice should increase a bit. Like Sachin told me that it is called voice modulation. So voice modulation should be there. Your voice must not be constant. You should speak according to the like if you are telling positive, you should have some josh or uh, like your volume should be high in normal language. And if you are negative, then you may speak a bit low, but you have to keep your up and down, and you have to look into the eyes of each person of the group. Just do not stare into one person's eyes. Make eye contact with the whole of the group, and do not look towards the GTO. And you should control yourselves. Even if you get stuck in the mid of this lecture, you can always continue. And even if you are stuck for 5 seconds, you can take a deep breath and start again. And one more thing, in my one of the SSBs, a person was like a candidate said that hello guys. So I would not prefer to introduce the group using guys. You may say friends or gentlemen, or friends. I think is the best, even if you do not want to use gentlemen. So please do not use guys. It is like casual, or it doesn't sound formal. So these are my main advices. And you small points make a whole lot of difference. As I told that I chose farming as my topic, so I put in 2 3 quotes about farming, and I said that I am very happy to get this topic, as I am from a proud farming family. So you can, if something is that you have expertise, so you may also add that I am happy that I got this topic. And you can definitely cover these topic into 3 minutes, and in the last 30 seconds you should start your conclusion. That's all from my side. Yeah, very great advice given by Dikshant, and to the point. And therefore, if once you practice, it will be very easy for you. And if you don't practice, उधर जाके, yeah, Sachin, we have Sachin here too. So Sachin will also give some point. Yeah. Okay. So first of all, good evening, everyone, and apologies I am late. So when you're talking about lecture it is a 3 minute short speech, and it's a objective. Its objective is to check your effectiveness of speaking. कि आपको अगर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी रैंडम टॉपिक पर 3 मिनट बोलना है, तो 3 मिनट आप किस प्रकार से बोलोगे, और जब आप बोलकर साइड में हटोगे तो आप कितने रिमेम्बर, मतलब क्या क्या इफेक्ट डाल के जाओगे ग्रुप पर अपने अपनी अपने वॉइस को यूज करते हुए. 1 मिनट. ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव. अभी क्या होता है कि जनरली कैंडिडेट्स बोलते थे ना, खुद को ही रोक लेते हैं. मतलब सबसे बड़ी डिफिकल्टी इन दैट सिचुएशन इज नथिंग. कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें, सिवाय एक चीज के कि हम खुद के लिए खुद परेशानियां खड़े कर देते हैं बाय ओवर थिंकिंग एंड बाय जजिंग योरसेल्फ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा बोल रहा हूँ, ये हो जाने पे क्या होगा, वो हो जाने पे क्या होगा. सो यू स्टार्ट बीइंग नर्वस. तो नर्वसनेस का सिंपल रीजन है कि तुम फोकस करो कि मुझे बोलना है, मुझे इस टॉपिक के बारे में बोलना है. तो अपने आप को इन्वेस्टेड रखो फिलहाल में जो भी काम करना है. और कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक चूज करके 3 मिनट सिर्फ यही टेंशन में बिताते हैं कि वहां पर जाके क्या कैसे होगा. उसकी जगह तुम टॉपिक के बारे में सोचो, जो भी टॉपिक तुमने डिसाइड किया है, और दिमाग में उस टॉपिक को अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड करके बोलो, ताकि तुम एक डायरेक्टेड वे में आगे बढ़ो. जैसे अगर तुम जैसे एक टॉपिक को क्वेश्चंस में डिवाइड करोगे या फिर कोई पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और उनके साथ साथ उनके 2 3 ऊपर की पॉइंटर्स याद रख लोगे, तो उससे जिस टाइम पे जब तुम लेक्चरेट दे रहे होगे तो तुम्हारा दिमाग एक डायरेक्शन में चलेगा. और कोई भी टाइम पे कोई भी पॉइंट अगर तुम मिस कर देते हो, you can directly jump to the next bullet point or the next topic, or sorry the next sub topic, ताकि तुम किसी भी पॉइंट पर स्टक ना रहो. तो this helps very much in keeping yourself engaged in that time of 3 minutes. और ये याद रखो कि जरूरी नहीं है कि तुम एग्जैक्ट 3 मिनट्स तक बोलो, तुम 2.5 मिनट से 3 मिनट के बीच में कभी भी फिनिश कर सकते हो. सो डू नॉट रश कि मुझे 3 मिनट में सब कुछ बताना है. नहीं, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है. जो भी 3 मिनट में अच्छे से बताया जा सकता है, आप वो ही बताओ. ठीक है.
कि ये नहीं कि मुझे बहुत सारा कंटेंट देना है तो जल्दी जल्दी बोलो. नो, यू हैव टू be effective and you also have to retain the attention of listeners. Okay, that's all from my side. Yeah, very well said by Sachin as well. And I hope you get the insights and advices. Rajat has asked some doubt. That sir, if I have to start preparation from zero for lectures, then what topic should I cover? Is we need to cover all the one because there will be more than, of course, there will be more than 100. There can be more than 1,000. But as I told you, ज़्यादातर it is related to current events. So you can see in your surroundings. आप जैसी न्यूज़पेपर उठाओगे आपको कुछ टॉपिक्स रोज रिपीटेटिव मिलेंगे. व्हाई? बिकॉज रोज ही रोज, जस्ट लाइक एआई. अभी एप्पल ने भी अपना एआई लॉन्च कर दिया. तो आजकल एआई बहुत न्यूज में. एंड डेफिनेटली जब मेरा था तब तो आया ही था. एंड आप अगर कोई भी एसएसबी में जाओ, आपके ग्रुप में भी किसी ना किसी को एआई का टॉपिक आएगा ही आएगा. दैट्स श्योर. अब जरूरी नहीं आपको है, बट देयर आर सो मेनी टॉपिक्स दैट आर सो मच प्रिवेलेंट नाउ दीज डेज. तो आपको उन पे ध्यान लगाना है, आपको उनको पढ़ना है, आपको उनके बारे में नॉलेज गेन करनी है. यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन. बट मेरा ये मानना है कि वही सेम पॉइंट है सचिन, बुलेट पॉइंट्स में ध्यान रखो. अगर आप रटने पे जाओगे, अगर आप एक सेंटेंस भी भूल गए, देन यू विल बी स्टक. वहीं अगर आप पॉइंट्स में ध्यान रखोगे, अगर आप एक पॉइंट भूले, आप दूसरा पॉइंट बोल पाओगे. You will speak on different points, right? So that is why what you can do while studying, आप points के way में each topic के ऊपर you are writing down whether merit, demerit or any kind of subtopic which you divide it into. That you can do, Ravi. Any other doubt we have? Yes, you can start or and you can do both of them with any kind of quotation, idiom and phrase. Even I did that too, because I like it got like I got the similar uh, lecture topic. EV I like मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा था, तो आई वाज काइंड ऑफ लकी. बट मैं लकी नहीं था, मेरे को पता था बिकॉज इट इज इन न्यूज. दैट इज व्हाई आई प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आई गॉट दैट. तो मैंने भी उसमें ईडीएम एंड फ्रेज यूज किया. एंड यू कैन ऑलवेज यूज कोटेशन. इट विल ओनली improve your lecturing. That yes, you are being creative with your lecturing. Any other doubt? Please raise your hand if anyone. So nobody has doubt. If nobody has doubt, please give a thumbs up. That's clear. Yeah. So mostly we have covered all of the indoor group tasks. It was GD first, GP, then our lecturing. अगर इसके अलावा भी if you guys have still any kind of doubt, you can ask according to about the GTO, whole GTO, whether it be indoor or outdoor, because we have covered the GTO part. Any kind of doubt? Anybody? No? So thank you Dikshant for being in and sharing your advices and insights again. And thank you Sachin, though you joined it, but still you shared your insights. And just a second. You can use some like words or like one two sentences of Hindi if you are very stuck and cannot remember anything else. Yeah. You said something, Dikshant? Sorry, I'm not. So you can speak Hindi. अच्छा. हाँ. Okay. So yeah, apart from that, any doubt? Anybody else? No? So thank you, Sachin, and thank you, Dikshant, again for joining the session, think sharing I your think insights. Gautam has covered almost 95% of the topic. So like, big thanks to Sachin and Gautam. And from tomorrow onwards, tomorrow is our interview session, I guess. So be prepared for that too, guys, and prepare hard. See,
for achieving something which you never had, you have to do something which you never did. So it's the time that you guys must uh, follow, consistently your towards your goal, and be consistent towards your goal and be disciplined towards it. आप मोटिवेशन से एक दिन कर पाओगे, 2 दिन कर पाओगे, 3 दिन, but it's the discipline and the consistency which will take you there. So keep that in mind and be humble and be disciplined towards your goal. Thank you. Thank you.